ابھی میں نے ماں کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی تھیں کہ خالہ نے ایک پھولدار خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر مجھے اپنی گود میں بھر لیا اور کہا کہ یہ میرے شجاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی ہے۔ تبھی وہ میری دادی کی طرف مڑی۔ اماں گواہ رہنا، میں نے سنبل کو اپنے شجو کے لیے مانگ لیا ہے۔ ہاں بیٹی، ہم کو یہ رشتہ قبول ہے اور میں اس بات کی گواہی دوں گی۔ تبھی پاس بیٹھی خالہ کی ساس مسکرا دی، کیونکہ میری دادی اور شجو کی دادی آپس میں سگی بہنیں تھیں، سو رسمی طور پر پالنے میں ہی میرا ناتا شجاعت سے جوڑ دیا اور یہ اپنی دو بزرگ خواتین کی رضامندی سے ہوا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس ناطے میں پختگی آتی گئی۔ ہم بچوں کے خیالات کی دنیا بھی وسیع ہونے لگی۔ فطری طور پر ہمارے جذبات کا رخ اسی جانب مڑتا گیا جس طرف ہماری منزل متعین کر دی گئی تھی۔ یہ لڑکپن کا زمانہ تھا۔ میں بھی اور لڑکیوں کے ساتھ سوات کی ایک حسین وادی میں بھیڑیں چرانے جایا کرتی تھی۔ شجاعت مجھ سے 4 یا 5 سال بڑا تھا اور وہ گاؤں کے ایک پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے اسکول کا رستہ چراگاہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ جب وہ اسکول جا رہا ہوتا تو ہم لڑکیاں اپنی بھیڑوں کو ہانکتی چراگاہ کی سمت جا رہی ہوتی، اور جب وہ چھٹی کے بعد واپس گھر لوٹ کر آ رہا ہوتا تو تب ہم لوگ بھیڑ بکریاں اکٹھا کر کے واپس گھر کو چل رہی ہوتی تھی۔ یہ وہ دن تھے جب یکسوئی اور خود فراموشی اور محویت کا وہ عالم رہتا تھا کہ کسی ناپاک ارادے کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ہم میں موجود نہ تھی۔ ایک روز ایسے وقت جبکہ شجاعت اسکول سے واپس آ رہا تھا، میری اس کی رستے میں مڈبیر ہو گئی۔ میں اس وقت پریشان اپنی ایک بھیڑ کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو گلے سے بچھڑ کر تیزی سے نیچے ہی نیچے اترائی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے ایسے عالم میں دیکھ کر شجاعت نے بستہ اپنے ہم جماعت کو تھما کر کہا، دوست تم اسے پکڑو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے بھاگا اور تھوڑی دیر میں آ لیا۔ کہنے لگا، نادان، ادھر خطرناک گھاٹی ہے، بنا سوچے سمجھے کیسے اس طرح بے تحاشا بھاگی چلی جا رہی ہو۔ میں نے بھیڑ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، تم جاؤ اور اپنے باقی گلا سنبھالو، اس کو میں لے کر آتا ہوں۔ میں واپس لوٹی اور اپنے گلے کو چراگاہ سے ایک جگہ میں اکٹھا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد شجاعت باغی بھیڑ کو گھیر کر اوپر لے آیا جو کہ اترائی کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ اس روز اس نے مجھے کہا، سنبل، کیا ہی اچھا ہو کہ تم اسکول جایا کرو۔ اسکول اماں بھیجے تو میں جاؤں، تم اپنی امی کو کہو کہ وہ میری ماں کو اس بات پر راضی کر لے۔ اچھا، میں کہوں گا، وہ بولا، پر اب تم گھر جاؤ۔ لیکن عمروں کے بڑھنے سے ہماری ملاقاتوں میں کمی آ رہی تھی۔ اس وقت میں 5ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی اور شجاعت 10ویں میں تھا، جب ہمارے علاقے کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہم لڑکیاں اکیلی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ لہٰذا میری سہیلیوں کو اسکول چھوڑنے ان کے بھائی جانے لگے، مگر میرا کوئی بھائی نہ تھا۔ لہٰذا یہ فریضہ امی نے شجاعت کو سونپ دیا کہ وہ مجھے اسکول چھوڑنے اور لے جانے کا پابند ہے۔ کچھ عرصے بعد پھپھو فیملی سمیت ہمارے گاؤں میں آ کر رہنے لگی، کیونکہ جہاں وہ پہلے رہائش پذیر تھی وہاں کے حالات زیادہ دگرگوں ہو گئے تھے۔ والد صاحب نے اپنا ایک خالی مکان ان کو رہنے کے لیے دے دیا۔ وہ روز میرے ساتھ شجاعت کو اسکول آتے جاتے دیکھتی تو تیوری پر بل ڈال لیتی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دائیں جانب خالہ کا گھر اور بائیں جانب پھپھی آباد ہو گئی، جبکہ درمیان میں ہمارا مکان تھا۔ جب میرے والد کی اس بہن کو یہ علم ہوا کہ میرا رشتہ شجاعت کو دینا طے ہے، ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اکلوتی لڑکی کو باپ کی وراثت سے جو کچھ ملے گا وہ اس کی اپنی خالہ کے گھر جائے گا۔ ان کا بھی ایک نکما بیٹا تھا جو عادات و خیالات سے پست فطرت کا مالک تھا۔ پھپھو نے اپنے فرزند سے مشورہ کیا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے سنبل پسند ہے، آپ ضرور ماموں سے رشتے کی بات کریں۔ آپ کے بھائی کی جائیداد پر آپ کا حق ہے، نہ کہ ان کی سالی کا۔ اب پھپھی صاحبہ اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر رشتے کی بات کرنے آ گئی، حالانکہ ان کو میرے اور شجاعت کے رشتے کا بخوبی علم تھا۔ امی نے نہایت نرم لہجے میں ان کو باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے بھی جو جی میں ٹھانی تھی اسے پورا کرنے کا تہیا کر لیا تھا۔ میری ماں کے طرز گفتگو سے اندازہ کر لیا کہ یہ ضرور ان کو خالی دامن لوٹانے والی ہے، لہٰذا بیٹے سے جا کر کہہ دیا کہ تم زیادہ امید نہ لگانا، تمہاری ممانی کے تیور بھانپ لیے ہیں میں نے، وہ کسی طور ہماری مرادوں کا پھول تمہاری جھولی میں نہ ڈالے گی۔ میں بھی شہیر کا بیٹا نہیں جو سنبل کو اپنی دلہن نہ بنا کر لے آؤں، قسم کھاتا ہوں ماں تیری جھولی کو مرادوں کے اس پھول سے ضرور بھروں گا، تم دیکھ لینا۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد شجاعت کا سکول سے سلسلہ ختم ہو گیا۔
खालू का ख्याल था कि अब उसको अपना ट्रक सौंप देंगे ताकि वो फ्रूट दीगर बड़े शहरों में आड़तियों को सप्लाई करने में उनकी मदद करे। लेकिन उन दिनों मुल्क की फिजा साजगार ना रही थी और हमारे बाग भी सुनसान हो रहे थे। सभी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, अगरचे हमारे बागों तक अभी बाबर समूम ना पहुंची थी। चमन फूलों से और बाग सेबों से लदे थे, मगर उनकी सप्लाई के रास्ते मादूम थे, लिहाजा हर शय जहाँ थी वहाँ धरी हुई थी। शहर में अक्सर स्कूल भी बंद थे, माँ सिवाय दूर दराज गाँव के स्कूलों के जहाँ अब भी हम पढ़ने जा रहे थे। एक रोज जब शुजात मुझे स्कूल से लेकर आ रहा था तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तूफानी हवाओं के झक्कड़ इतने तुंद थे, लगता था कि पागल हवा उनको जड़ से उखाड़ देगी। रास्ते पर फिसलन थी और सरों के ऊपर पहाड़ों से टूट टूट कर बड़े बड़े पत्थर रास्ते में गिरते जा रहे थे। उम्र भर में पहली बार हमने ऐसी गजबनाक तूफानी बारिश देखी थी। शुजात मेरा हाथ पकड़े हुए था और हम पतली सी पगडंडी पर सहमे सहमे चल रहे थे। कपड़े भीग जाने से शदीद सर्दी लगने लगी थी, मेरे दांत बज रहे थे और मैं कांप रही थी। बिजली के कूदों की लकपक से डर कर हम दोनों दरख्तों के तले भी पनाह न ले सकते थे। दरख्तों पर बैठे बंदरों की चीखों पुकार अलग दहशत ज़दा किए देती थी। जब हम एक मोड़ पर पहुंचे तो हमें रास्ते में एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। लगता था किसी ने बारिश से बचने के लिए उसे एक जानिब सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था। सड़क के किनारे हमें एक कुटिया भी नजर आई जिसकी दीवारें पत्थरों की बनी हुई थी और चौखट में मजबूत दरवाजा नस्ब था। हिम्मत करके हम उस तरफ बढ़ गए ताकि यहाँ थोड़ी देर ठहर कर बारिश से पनाह ले सकें और बौछार से बच सकें। दहलीज के अंदर झांका तो अंदर कोई नहीं था सिवाय इसके पीने का पानी जग और एक ग्लास मौजूद था। एक चारपाई भी पड़ी हुई थी। हमारे लिए ये छोटी सी कुटिया किसी महल से कम ना लगी। हम उसमें घुसकर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। आध घंटे में बारिश थम गई तो शुजात ने बाहर झांका, कहने लगा कि बारिश बराए नाम रह गई है, लेकिन रास्ता बेहद खराब और खतरनाक होगा। मुझे तो घर तक पहुंचना मुहाल नजर आता है, मगर घर तो पहुंचना है। जरा देर में अंधेरा छा जाएगा, रात पड़ गई तो क्यों कर सफर करेंगे। अभी निकल चलो, गिरते पड़ते पहुंच ही जाएंगे। अभी हम ये बात कर रहे थे कि ट्रक स्टार्ट होने की आवाज आई। ताहम ट्रक चला नहीं, घरर घरर करके बंद हो गया। फिर स्टार्ट होने की आवाज सुनाई ना दी। खुदा जाने क्या मामला है, शायद रास्ता बहुत खराब है। जिसका भी ट्रक है वो उसे चला नहीं पा रहा। हम इसी शशोपन में थे कि घर कैसे रवाना हो। अचानक कुटिया में दो शख्स दाखिल हुए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी हम पर डाली। मैंने कहा था ना बाबा जान, मुमानी शुजात के साथ सुंबल को स्कूल भेजती हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। इससे पहले भी कई बार मैंने इनको इस कुटिया में जाते देखा था, मगर मैं चुप रहा कि शायद मुझे ही झूठा कहा जाएगा। मामू मुमानी मेरी बात पर यकीन ना करेंगे, लेकिन बाबा जान आज आपने खुद देख लिया है ना अपनी आंखों से इनको यहाँ। तबरेज के मुंह पर झूठ कहने से मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, तबरेज तुम कितनी गलत बात कर रहे हो। हम यहाँ पहले कभी नहीं आए, देख नहीं रहे बारिश कितनी बरसी है। स्कूल से लौटते हुए तभी हमने यहाँ कुछ देर को पनाह लिया। बकवास बंद करो फूफा गुर्राए, तुम किसी पहाड़ी की ओट में किसी दरख्त तले भी पनाह ले सकते थे। हम भी तो दरख्तों के एक झुंड के नीचे खड़े थे कि बारिश थमे तो निकलें। ये कुटिया स्कूल के रास्ते में तो नहीं है, फिर तुम लोग इस रास्ते से इतनी दूर यहाँ कैसे आन पहुँचे और यहाँ छुपे कैसे हो। हमने ट्रक को दूर से खड़ा देखा तो इधर का रास्ता लिया कि अगर ट्रक वाला गांव का है तो हमें घर पहुंचा देगा, शुजात ने कहा। मगर उन्होंने हम लोगों को हमेशा के लिए जुदा करने की ठान ली, जिसके लिए हम पर कोई नाकाबिले मुआफी इल्ज़ाम लगाना लाजमी था। फूफा ने हमको हाँका और ट्रक के पास ले गए। इतने में उनका वाकिफ ट्रक ड्राइवर भी न जाने किधर से आ गया। अगरचे बारिश थम चुकी थी मगर रास्ता काफी खराब था। फूफा का मूड सख्त तौफ था। उन्होंने मेरे वालिद को ये वाकया गलत रंग देकर सुनाया और फूफी ने भी फैसला कुन अंदाज में कह दिया कि हरगिज शुजात से वो मेरी शादी नहीं होने देंगी, जो शादी से कबली मुझे बुराई के रास्ते लिए जा रहा है। उनके वावेला करने पर मेरे बाप के दिल में भी शुजात की तरफ से मैल आ गया और वो उसको हकारत भरी नजरों से देखने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा स्कूल जाना बंद हुआ और अब मैं भेड़ें चराने को हम जोलियों के हमरा घर से निकलकर चरागाह की तरफ भी नहीं जा सकती थी। शुजात को भी अम्मी ने तंबीह कर दी, फिलहाल हमारे घर मत आना, तुम्हारे खालू इन दिनों गुस्से में और तुम्हें मशकूक निगाहों से देखते हैं। मामले को जरा सर्द होने दो, अभी मैं इस मामले पर उनसे बात नहीं कर सकती। वो अपनी बहन बहनोई की बातों में आ गए हैं। खामोशी ही उस दम बेहतरीन हिकमत अमली है।
खाला ने शुजात को हमारे घर आने से रोक दिया और मैं भी उसके घर नहीं जा सकती थी। हमारी मुलाकातों का सिलसिला बंद हो गया, जबकि हमें एक दूसरे से बला की मोहब्बत थी। पल भर का ओझल होना भी नागवार था और फिर उसका घर भी तो दूर ना था। हमारे घरों के दरमियान सिर्फ एक छोटी सी दीवार ही तो थी। इतनी कुर्बत में आपके कदमों की आहट तो क्या दिल की धड़कन भी सुन सकती थी। इस दौरान फूफो ने अब्बू पर दबाव डाला कि सुंबल का रिश्ता आप मेरे बेटे से कर दें। चूंकि वालिद की निगाहों में मायूब हो चुका था, तभी उन्होंने मेरा रिश्ता अपनी बहन की खुशी के लिए उनके बेटे को देने का फैसला कर लिया। अभी ये मामला चल रहा था कि मेरी दादी वफात पा गईं। एक उन्हीं का आसरा था, वो भी ना रही तो वालिद को समझाने वाला भी कोई ना रहा। शुजात तबरेज से कहीं बेहतर लड़का है। जब शुजात ने सुना तो खालू सुंबल का रिश्ता अपने भांजे को दे रहे हैं, वो हद दर्जा दिल शिकस्ता हुआ और सवाद से अपने मामू के पास बनू चला गया। जिस रोज वो हमारे गांव को छोड़कर जा रहा था, अम्मी को खुदा हाफिज कहने पल भर को आया। उसकी उतरी हुई सूरत देखकर मेरी जान ही निकल गई। जान गई कि ये मुस्तकिल मिजाज अब गया तो दोबारा कभी गांव में कदम ना रखेगा, बल्कि इसके माँ बाप भी इसके पीछे बनू ही चले जाएंगे, क्योंकि हालात के वाज़े असरात अब हमारी खुशहाली पर भी पड़ने लगे थे। और अक्सर गांव वाले शहर वालों की तरह बदहाली के खौफ से नकल मकानी करते जा रहे थे। वो अपनी भेड़ बकरियां सस्ते दामों बेच रहे थे। जब खाला का सारा कुंबा बनू कूच कर गया तो फूफी की बन आई और वो हमारे घर के चक्कर काटने लगी। मैं जानती थी कि उनका इस तरह हमारी तरफ चक्कर काटना खतरे से खाली ना था। चंद हफ्ते बाद उन्होंने हमारे ही घर में डेरे डाल लिए। मुमकिन था कि मेरी और तबरेज़ की शादी की तारीख रख दी जाती, लेकिन इलाके में चली बासमूम ने बिलाखिर हमारे गांव को भी पूरी तरह लपेट कर हर सू फैली शादाबी को निगल लिया। मकान वीरान और चमन सुनसान पड़ने लगे। यूं वालिद साहब और फूफो माँ अहले अयाल अपने गांव को छोड़कर बनू आ गए और फिर यहाँ से डेरा इस्माइल खान जाकर पनाह गुज़ीर हुए, क्योंकि यहाँ मेरे वालिद के एक करीबी अजीज मस्जिद के इमाम और आलिम दीन थे। उन्होंने हम लोगों को अपने यहाँ पनाह दी और रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया। मेरे खालू और शुजात भी उन्हीं इमाम साहब के पास आते जाते थे कि उन लोगों से उनका भी करीबी ताल्लुक था। ये इमाम साहब मेरे खालू के बड़े सौतेले भाई थे और शुजात के वालिद से बहुत प्यार भी करते थे। एक रोज इमाम साहब हमारे घर आए तो खालू, खाला और शुजात भी उनके हमराह थे। बुजुर्ग आपस में बातें करते रहे और मर्दान खाने में तशरीफ फरमा थे, जबकि खाला और शुजात अंदर अम्मी जान के पास आ गए। पहली बार मेरा और शुजात का दोबारा आमना सामना हुआ और बात करने का मौका भी मिला। मैंने उसको फुफ्फो के इरादे से आगाह किया तो उसने कहा, सुंबल तुम मेरी बचपन की मांग हो। हमारी वादियों ने तुम्हारा रिश्ता तय किया था, हमारी दादियों ने हमारा रिश्ता तय किया था। मैं तुम्हें अपनी मंगेतर समझता हूँ। अब अगर तुम भी इस रिश्ते को मानती हो तो समझ लो कि हमारा जिस्मो जान का रिश्ता है। तुम्हारी मोहब्बत अब मेरे दिल पर नक्श हो चुकी, ये नक्श तो अब मौत भी नहीं मिटा सकती। तुम मुझ पर एतबार करो और अल्लाह पे भरोसा रखो। उसके इन अल्फाज ने मेरे दिल को मजबूती दी और मेरे जिस्म में जान पड़ गई। वालिद साहब को इमाम साहब ने मशवरा दिया कि अब गांव वापस जाने की बजाय यहाँ रहकर किसी कारोबार की, खुदा जाने वहाँ के हालात कब ठीक हों। तुम जो कारोबार करोगे मैं उसमें तुम्हारी पूरी तरह मदद करूँगा। वालिद साहब जो जमा पूंजी गांव से लाए थे, यहाँ दुकान लेकर फ्रूट फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। मुझे भी स्कूल में दाखिले की इजाज़त मिल गई। तब मेरा दिल खुशी से झूम उठा और वो उदासी और बोरियत भी खत्म हो गई जिसने मेरे दिल में डेरे डाल दिए थे। इमाम साहब ही के हौसला देने से खाला, खालू भी डेरा इस्माइल खान आ बसे और शुजात की बहन भी स्कूल जाने लगी। नाता फिर से जुड़ गया। यहाँ तबरेज़ की दोस्ती एक गैर मुल्की नौजवान से हो गई जो मनशियात के मामलात में मुलव्वस था। सच है कि बुरी सोहबत इंसान को ज़रूर मुसीबतों में डालती है। तबरेज़ को भी दौलत कमाने के लालच में उस लड़के और उसके साथियों ने ट्रैप कर लिया और वो अनाड़ी पहली उड़ान में ही गिरफ्तार हो गया। अब उसका छुड़ाना मुश्किल अमर हो गया। इस सिलसिले में इमाम साहब भी बेबस थे। बहरहाल किसी तरह फूफा ने कुछ दे दिलाकर बेटे को पुलिस के चंगल से निकाल लिया, लेकिन तबरेज़ की इज्जत रिश्तेदारों की नज़रों में दो कौड़ी की रह गई। अब फूफो जब वालिद पर मेरी और उसकी शादी का दबाव डालती तो वो सोच में पड़ जाते। उधर बहन आंखों में आंसू भर लाई झोली फैलाकर अर्ज़े मुद्दा बयान करती तो उधर बेटी का मुस्तकबिल तारीक नजर आ जाता। शुजात ने इसी असना में अपना ध्यान अपने बाप के कारोबार पर लगाया और ट्रक पर फ्रूट सप्लाई करने के काम में।
काफ़ी दौलत कमाने लगा। उन्होंने प्लाट खरीदा और उस पर घर की तामीर भी शुरू करा दी। नए शहर आकर भी उनकी इज्जत और साख बढ़ने लगी। वालिद साहब ये सब देख रहे थे, मगर बहन ने बैन डाला हुआ था कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं, ना वो मुजरिम है। नई जगह किसी अजनबी को दोस्त बनाकर अनजाने में फंस गया है। इस भूल की इतनी बड़ी सजा ना दो वरना हम और तुम उम्र भर के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। सुंबुल का रिश्ता मेरे तबरेज को दे दो ताकि हम बहन भाई आपस में मजबूती से जुड़े रहें। गर्ज ऐसी बातें करके मेरे वालिद को उन्होंने बिलाखिर बातों के जाल में फंसा ही लिया। अब्बा जान ने हार मानकर मेरी और तबरेज की शादी की तारीख दे दी। फूफो और फूफा की बाछें खिल गई। वालिद साहब का काफी बैंक बैलेंस था जो वो साथ लाए थे, और मुझ इकलौती औलाद को बहुत कुछ मिलना था। यहाँ मेरे लिए इसी सबब अच्छे और आला घरानों से रिश्ते भी आए, लेकिन फूफी के लालच भरे जहर आलूद खंजर से मेरा काम तमाम ही हो चुका था। मुझे किसी और रिश्ते की परवाह ना थी, मगर जो किरदार कशी शुजात की फूफा और तबरेज की तरफ से हो चुकी थी, मैं अभी तक उसकी आग में सुलग रही थी। शुजात को पुज़मुर्दा और उदास देखकर मेरी जान जाती थी। इसी दुख से मेरा बदन नहीफ और सदमे से चूर था। मेरी हालत पे घर वालों को तशवीश थी। आखिर एक रोज़ अपनी हालत ज़ार अम्मी को बता दी। वो मेरा दर्द जानती थी और उन्होंने मुझे ढारस दी कि थोड़ा सा मौका खुदा दे तो ज़रूर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे खबर है कि शुजात पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उन लोगों को बरादरी में गंदा किया गया है। मैं भी मौके की तलाश में हूँ। अभी तुम्हारे वालिद के जुल्म की वजह से चुप हूँ। मौका मिला तो तेरी फुफ्फो को मज़ा चखा कर रहूँगी, जिसने मेरी बेटी और भांजे के दिल के चरागों को अपनी खुद गर्जी की वजह से बुझाया है। शुजात के मुसाइब देखकर मेरी भी जान जाती है, जिसकी बेलौस मोहब्बतों का सिला तोहमतों की सूरत में उसको मिला है। मैं तुम्हारी खाला और खालू से आंखें नहीं मिला सकती। धीरे धीरे मेरी रूह की मौत का दिन शादी के जश्न के सूरत में करीब आता गया, और मेरे सब्र का समर ये मिला कि मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। मैंने माँ को उनकी तसल्लियाँ याद दिलाई और उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर कर दी, मगर सर चूम कर मैंने दादी जान की मिन्नत की। सहेलियाँ पहले ही मेरे घर वालों की मिन्नतें करके हार चुकी थीं, मगर किसी ने भी मेरी मुश्किल का हल ना निकाला। निकाह के रोज़ काजी साहब ने हस्बे दस्तूर गवाहों के रूबरू सवाल किया, वो सवाल किया जो हर लड़की से एक बार ज़रूर किया जाता है जब वो दुल्हन बनती है। इस सवाल के मुस्बत जवाब में मुझे आज अपनी मौत नज़र आ रही थी। खुदा जाने क्या हुआ कि तबरेज को देखकर मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़कने लगी, जिसने बारिश से बचने को कुटिया में पनाह लेने की पादाश में शुजात और मुझ पर घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया था और सारे ख़ानदान की नज़रों में गिरा दिया था। क्या अब उसी शख्स से मैं शादी कर रही हूँ? अगर मैं गलत किरदार की थी तो इसने मुझे क्यों कबूल किया? ये सवाल जहन में उभरा तो तन बदन में आग सी भड़कने लगी, और ज़बान ने तबरेज को कबूल करने से इनकार कर दिया। मनफी जवाब सुनते ही काजी साहब की जान हलक में आ गई। गवाहों के पैरों तले ज़मीन ना रही। अब वालिद साहब और फूफा काजी साहब को बगैर मेरी कबूलियत के निकाह पढ़वाने पर मजबूर करने लगे, तो वो खिलाफे शरअ अमर पर राज़ी ना हुए और वहाँ से चले गए। ये सब इमाम साहब के रूबरू हो रहा था कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब वालिद साहब का गुस्सा दीदनी था और मेरी जान पे बनी हुई थी। अब्बू ने मुझे उन्हीं के सामने ठोकरें मारनी शुरू कर दी, मार मार कर लहूलुहान कर दिया। इमाम साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो आगे बढ़े और उनका हाथ पकड़कर बोले, बस सब और ज्यादा जुल्म ना करो। ये जो तुम कर रहे हो ये भी गैर शरई है, और लड़की का निकाह उसकी मर्जी के बगैर कराना भी गैर शरई अमल था। तुम मोहलत दो, मैं एक बार बच्ची को समझाता हूँ। मेरे समझाने से मान गई तो मैं खुद तबरेज से इसका निकाह दूंगा। सब कमरे से चले गए। मैं, मेरी वालदा और इमाम साहब रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, बाप का सर सब लोगों के सामने झुकाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अगर ये सब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा था तो कम से कम मुझे ही बता दिया होता। अब भी सोच लो बेटी, माँ बाप लड़की का भला सोचते हैं और उनका बहुत ज्यादा हक होता है औलाद पर। तुम अगर फिर भी खुद को आमादा नहीं पाती तो मैं बारात को वापस जाने का कह देता हूँ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने प्यार करने वाले बाप का सर यूं सबके सामने नहीं झुकाना चाहिए था, और ऐसा करके मैंने वाकई बहुत बड़ा गुनाह किया है। माँ बाप की नाफरमानी की शायद अल्लाह के हुजूर भी मुआफ़ी ना हो। तभी मैंने इमाम साहब से कहा, आप बारात को वापस जाने का मत कहिए, मैं अपने वालिद का सर निगू नहीं होने दूंगी, अपना सर झुका लेती हूँ।
امام صاحب نے میرا پیغام والد کو پہنچایا اور پھر مجھ کو رضامند جان کر میرا نکاح تبریز سے پڑھوا دیا۔ یقین جانیے مجھے لگا اس روز کہ میں زندہ لاش ہوں اور میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی خالہ نے نکاح سے انکار کرنے کی بے عزتی پر بھڑکا کر مجھے تبریز سے جانوروں کی طرح پٹوایا۔ بات بات پر مجھے بے غیرت اور بد کردار ہونے کے طعنے ملتے۔ 2 ہی ماہ میں میری ساری جائیداد اپنے نام کروا کر طلاق کے کاغذ ہاتھ میں پکڑائے اور یہ کہہ کر دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا کہ میں بانجھ عورت ہوں۔ ماں باپ کے در پر پڑی تھی کہ ایک دن پھر خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئیں اور مجھ بانجھ کو بیاہ کر لے گئیں۔ اللہ نے اپنا کرم کیا اور پہلے ہی سال مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، اور آج میں جت کا شکر ادا کروں کم ہے۔ میری پھپھو کو ان کے شوہر کے مرتے ہی نئی بہو نے دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ ابا جان نے ان کی ساری خطائیں معاف کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے انہیں اللہ کے نام پر معاف کر دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔